In this video, we will discuss Hickesian model of trade cycle, multiplier accelerator interaction theory of business cycle. This is the Hickesian model given by J.R. Hicks. Hicks has developed his theory of trade cycle in his book A Contribution to the Theory of Trade Cycle in 1950. हिक्स ने 1950 में एक बुक लिखी है ए कंट्रीब्यूशन टू द थ्योरी ऑफ ट्रेड साइकिल. उसमें ये ट्रेड साइकिल की थ्योरी दी है. His theory is based on the combination between multiplier accelerator interaction and Harry-Dommer growth model. तो ये जो थ्योरी है हिक्स द्वारा दी हुई, ये मल्टीप्लायर एक्सेलरेटर इंटरेक्शन एंड हैरी-डॉमर के ग्रोथ मॉडल के ऊपर बेस्ड है. Now, what are the main ingredients of Hicks theory of trade cycle? Hicks theory में क्या क्या पॉइंट्स यूज किए हुए हैं? फर्स्ट इज Keynesian concept of saving investment relationship and multiplier. First, he used Keynesian concept of saving investment relationship and multiplier. Keynesian multiplier is investment multiplier that shows that K is 1 upon 1 minus MPC. And Clark's acceleration principle. This is capital output ratio given by J.V. Clark. That is nu equals to change in investment due to change in output. Samuelson's multiplier accelerator interaction and Harry-Dommer growth model. This theory is based on these 4 points. Now, assumptions of Hicks theory. First assumption, he assumes an equilibrium rate of growth in the economy. That is, a rate at which realized growth rate equals to the natural growth rate. These growth rates are given by Harry-Dommer in their model, Harry-Dommer growth model. First, Hicks assumed that the real growth rate or actual growth rate, you can say, this is equals to the natural growth rate. इसकी जो डिटेल है that is available in the Harry-Dommer growth model. You can study this model at UG level or at PG level. Second point, autonomous investment increases at a constant rate. Suppose जो autonomous investment है, government investment, you can say public investment, वो constant rate पे increase हो रहा है, which is always equals the rate of increase in voluntary saving. The equilibrium growth rate is determined by the rate of autonomous investment and saving. जो equilibrium growth rate हम बनाएंगे, equilibrium growth बनाएंगे, equilibrium income बनाएंगे, that is determined by this autonomous investment. This is the Keynesian part of his theory. Third assumption, he assumes a Samuelson type consumption function, that is Ct equals to a y t minus 1.
if you watch the video of Samuelson model, then you will find that Samuelson assumed there is a time lag, 1 year lag between consumption and income. तो जो पिछले साल की कंजम्पशन है T-1 पीरियड की, इनकम जो है पिछले साल की, दैट इज कंज्यूम्ड इन द करंट ईयर, और करंट ईयर की जो कंजम्पशन है यू कैन से वो पिछले साल की इनकम के ऊपर डिपेंड करती है. बिकॉज ऑफ lag of consumption expenditure behind income and lag in non-wage income behind the change in GDP. तो पिछले साल की इनकम के ऊपर इस करंट कंजम्पशन, ऐसे ही जो नॉन वेज इनकम है, मतलब जो दो तरह की इनकम होती है. एक तो होती है जो हम काम करते हैं, लेबर करते हैं, उसके बेस पे जो इनकम है दैट इज़ द वेज इनकम. और जो हमारी अदर इनकम है, जैसे कोई प्रॉपर्टी है, उसका हमें कुछ रेंट आ रहा है सपोज, दैट इज़ नॉन वेज इनकम. तो नॉन वेज इनकम एंड जीडीपी के बीच में भी ऐसे ही एक 1 ईयर का लैग है. Thus, the saving function naturally becomes the function of the past year's income. इसलिए जो सेविंग फंक्शन बनेगा, क्योंकि पिछले साल की इनकम हमने आज कंज्यूम की. जैसे सपोज इन 2006 इनकम वाज 100. In 2007, out of this 100 income, suppose 80 is consumed, then in 2007 the saving will be 20. Saving function becomes the function of the past year's income. तो पिछले साल की इनकम के बेस पे सेविंग फंक्शन बनेगा. We explain this model. Because of these assumptions, Hicks multiplier becomes a mathematical truism. जो हिक्स का मल्टीप्लायर है वो कैलकुलेशन अगर हम करेंगे, मैथमेटिकल मॉडलिंग में जाएंगे तो अपने आप ही वो प्रूव हो जाएगा. With the lagged relationship between income and saving investment, this saving will become investment. तो अगर हम सेविंग को पास्ट ईयर की इनकम के बेस पे कैलकुलेट कर रहे हैं, इट मीन्स वी आर आल्सो कैलकुलेटिंग इन्वेस्टमेंट ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट ईयर इनकम. विद द लैग्ड रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड सेविंग इन्वेस्टमेंट, द मल्टीप्लायर प्रोसेस हैज अ डैम्पनिंग इफेक्ट ऑन द फ्लक्चुएशन. Dampening means something which is less strong, you can say. कोई ज़्यादा अफेक्ट नहीं होता. Because of this 1 year lag, जो मल्टीप्लायर प्रोसेस है उसका फ्लक्चुएशंस के ऊपर, फ्लक्चुएशंस, ट्रेड साइकिल फ्लक्चुएशंस, कोई ज़्यादा अफेक्ट नहीं है. द लैग्ड मल्टीप्लायर एक्ट्स एज अ डेप्रेसेंट ऑन द अपस्विंग एंड अ काउंटर फोर्स ऑन द डाउनस्विंग. तो मल्टीप्लायर का जो रोल है वो है जब इकॉनमी अपवर्ड जाएगी तो डेप्रेसेंट के तौर पर इसको हाईएस्ट के बाद नीचे को लेके आना, और जब इकॉनमी नीचे को जाएगी तो इसको लोएस्ट पे आके ऊपर को लेके जाना. तो मल्टीप्लायर प्रोसेस हैज़ अ डैम्पनिंग इफेक्ट. द लैग्ड मल्टीप्लायर, लैग्ड मीन्स बिकॉज इट इज बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर्स इनकम, एक्ट्स, तो
पिछले साल की इनकम के हिसाब से सेविंग होगी। इट मीन्स 2006 के हिसाब से 2007 में इन्वेस्टमेंट होगा, और 2007 के इन्वेस्टमेंट के साथ जो इनकम होगी फिर वो आगे नेक्स्ट ईयर में इन्वेस्टमेंट सेविंग रिलेशनशिप बन जाएगा, लाइक दैट। तो ये मल्टीप्लायर जो है वो डेप्रिसेंट का काम करेगा, ऊपर जाते जाते इकोनॉमी की ग्रोथ को कम करेगा। तो ये जैसे हम इसको ऐसे ऊपर को जाएंगे तो नेचुरली ये हॉरिजॉन्टल टाइप सिचुएशन बनेगी। ये मल्टीप्लायर की वजह से है, मल्टीप्लायर के डेप्रेसेंट इफेक्ट की वजह से है। और जब हम नीचे को आएंगे तो नीचे डाउन स्विंग पे ये काउंटर फोर्स इसको डाउन से हॉरिजॉन्टल बना के ऊपर को ले जाने के लिए मल्टीप्लायर फिर काम करेगा। Hicks distinguishes between autonomous and induced investment। तो दो इन्वेस्टमेंट के बीच उन्होंने डिफरेंस बताया है। He assumes that autonomous investment is a function of current output। जो autonomous investment है वो करंट आउटपुट के हिसाब से करना है, कि कितना आउटपुट करना है उस हिसाब से autonomous investment, and is undertaken to replace the worn out capital। autonomous investment होगा जितनी हमारी कैपिटल लगी हुई है आफ्टर द प्रोडक्शन प्रोसेस, आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस, तो जितनी कैपिटल डेप्रिशिएट हो गई उतना ही होगा autonomous investment। जो induced investment है in his model is a function of change in output। इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है वो आउटपुट के चेंज के हिसाब से करना होगा। द चेंज इन आउटपुट जनरेट्स इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट which brings the accelerator in action। means suppose 2006 में हमने आउटपुट किया 100, तो 100 के हिसाब से हमारे पास कैपिटल है। In 2007 suppose 20 capital is worn out, then the remained capital is 80। तो 80 में हम 2007 में 20 करेंगे ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट, इसको 100 बनाने के लिए। जितना आउटपुट पहले था उतना ही आउटपुट पैदा करने की कैपेसिटी ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट ने जनरेट कर दी। एंड इफ in 2007 suppose we want to produce 10 more output, we want to produce 110 output, then the additional 10, to produce the additional 10 output we need induced investment। तो 10 को आउटपुट को ज़्यादा पैदा करने के लिए हमें कितना इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट और करना होगा, ये हमें पता चलेगा एक्सेलरेटर से। दैट इज द कैपिटल आउटपुट रेशो। इट मे बी नोटेड हियर दैट दिस एक्सेलरेटर इंटरेक्ट्स विद मल्टीप्लायर इफेक्ट अपॉन इनकम एंड कंजम्पशन। तो इस पहले मल्टीप्लायर है, उसके बाद एडिशनल आउटपुट करने के लिए इन्वेस्टमेंट किया जाएगा तो एक्सेलरेटर हो जाएगा। फिर दोनों की जो इंटरेक्शन बनेगी वो इनकम के ऊपर इफेक्ट डालेंगे। मतलब यू कैन से जो इंटरेक्शन है
मल्टीप्लायर एंड एक्सेलरेटर के बीच में, वो तो इसको ट्रेड साइकिल को अप और डाउन लेके जाएंगे, अप साइड चलेगी, डाउन साइड चलेगी, बट जो टर्निंग पॉइंट्स आएंगे, अप जाते जाते रुक जाना, नीचे को मुड़ना, नीचे जाते जाते रुक जाना, ऊपर को मुड़ना, ये जो टर्निंग पॉइंट्स होंगे ट्रेड साइकिल के, ये मल्टीप्लायर की वजह से होंगे। हिक्स इमेजिन्स सीलिंग एंड बॉटम फॉर द अपस्विंग एंड डाउनस्विंग। तो हिक्स ने कुछ सीलिंग अज्यूम करी हैं, लाइक दिस, सपोज दिस इज द सीलिंग, दिस इज एल लाइन इज लोअर लिमिट। तो जो साइकिल है वो इसके बीच बीच में ही होगा। द सीलिंग ऑन अपवर्ड एक्सपेंशन, ये जो अपवर्ड सीलिंग है ये कैसे बनाया, किस बेस पे बनाया, इज इम्पोज्ड बाय द स्केर्सिटी ऑफ एम्प्लॉयबल रिसोर्सेस, क्योंकि जैसे जैसे हम ऊपर को जाएंगे मीन्स आउटपुट ज़्यादा पैदा होगा, रिसोर्सेस की डिमांड ज़्यादा हो गई। तो जब सभी रिसोर्सेस एम्प्लॉयबल हो जाएंगे, एम्प्लॉयड हो जाएंगे, एग्जॉस्ट हो जाएंगे, तो और आउटपुट इसके ज़्यादा नहीं हो पाएगा, तो अपर लिमिट आ जाएगी, दैट इज़ नोन एज सीलिंग बिकॉज ऑफ द scarcity of resources. On the other side, in regard to the limit of the downswing, अगर हम इस लिमिट को देखें कि आते आते ये यहाँ तक ही क्यों आएगा, इसके नीचे क्यों नहीं जाएगा, he says there is no such direct limit on contraction, कोई ऐसे डायरेक्ट लिमिट तो नहीं है जैसे अप स्विंग में है कि रिसोर्सेज ख़त्म हो गए तो नीचे क्या होगा, बट एन इनडायरेक्ट लिमिट इज इम्पोज्ड बाय द मैकेनिज्म ऑफ एक्सेलरेटर ऑन द डाउन स्विंग। तो जो एक्सेलरेटर की जो वर्किंग है, उसका जो सिस्टम है काम करने का, उसकी वजह से हमने ये बनाया है लोअर लिमिट, दिस वन। However, irrespective of what Hicks says, तो अगर हम वैसे भी देखें, there is a natural limit to bottom level of growth, तो ग्रोथ जब नीचे को आए तो ज़ीरो पे तो नहीं होगा आउटपुट। अगर हम आउटपुट की बात करें, प्रोडक्शन की बात करें, प्रोडक्शन कम हो गया इकॉनमी में और कम हो गया, तो ज़ीरो पे तो आएगा नहीं। क्यों नहीं आएगा? Because people do produce goods and services for their survival, come whatever may। तो जो लोग हैं वो कुछ तो कंज्यूम करेंगे ही, इसलिए कुछ तो पैदा होगा ही, इसलिए जो लोअर लिमिट है वो ज़रूरी है। सो देयर इज़ अ लिमिट टू इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन, तो वो लिमिट तो होगी। ऐसे नहीं हो सकता कि जो डाउन स्विंग है वो चलते 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 ज़ीरो पे आ जाए, या जो आउटपुट है वो ज़ीरो पे आ जाए। दिस इज़ अबाउट हिक्स मॉडल। नाउ वी कैन एक्सप्लेन दिस मॉडल विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। इस डायग्राम को हम दोबारा बना लेते हैं।
this is suppose time and this is suppose output. This is in log form. This is suppose lower limit, and this is suppose upper limit. तो ये लिमिट है, दिस इज LL lower limit and this is suppose FF which shows the level of full employment. तो इसके बीच बीच में ही जो ट्रेड साइकिल है ऐसे वो चलेगा, अपर लिमिट के ऊपर नहीं जा सकेगा बिकॉज ऑफ द फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेस, और लोअर लिमिट से नीचे नहीं आएगा बिकॉज ऑफ द लोएस्ट लेवल ऑफ प्रोडक्शन, जो कि कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो इसको हमने ऐसे पॉजिटिव क्यों बनाया है, हॉरिजॉन्टल क्यों नहीं बनाया? सपोज this line represents autonomous investment. What is the meaning of this line, autonomous investment? This autonomous investment AA increases at constant rate. अब हम इसको बोल रहे हैं increases at constant rate. तो ये increase हो रहा है because it is positively sloped. ये constant rate है because it is a straight line. तो ये कर्व शेप नहीं है, इसकी जो स्लोप है वो कांस्टेंट है। सपोज इनिशियल जो इन्वेस्टमेंट है, ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट, वो ये है, पॉजिटिवली स्लोप्ड है। इस वजह से जो लोअर लिमिट है, अपर लिमिट है, वो पॉजिटिवली स्लोप्ड है। तो जो भी हमारा ट्रेड साइकिल है वो इसके बीच में है, लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट के बीच में। एंड अगर हम अज्यूम करें, सपोज दिस इज द equilibrium path of output. This is suppose equilibrium path. इस इक्विलिब्रियम के हिसाब से जो इकॉनमी है वो चलेगी। तो ये भी कांस्टेंट स्लोप्ड है, कांस्टेंट ही हमने बनाया है। ऑल दीज आर, और यू कैन से दिस इक्विलिब्रियम इज ए कांस्टेंट मल्टीपल ऑफ दिस ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट। जैसे सपोज ये 10 है, ये सपोज 50 है,
then it is 5 times of this autonomous investment at each point. At each point of autonomous investment, equilibrium is 5 times suppose. तो उस हिसाब से हमने ये कांस्टेंट बनाए हैं. FF, as we explained, this is the ceiling, employment ceiling due to full employment, जो कि इक्विलिब्रियम के ऊपर है. एंड जो LL है, LL shows equilibrium path during the period of slump. अगर इकॉनमी नीचे को आ गई तो ये इक्विलिब्रियम होगा. तो आउटपुट जो है वो इसके नीचे नहीं जाएगा, पर ये हमने अज्यूम किया. द आउटपुट लेवल विल नेवर गो बिलो दिस लेवल. इस लेवल के नीचे नहीं जाएगा. नाउ सपोज दैट इकोनॉमी हैज बीन प्रोग्रेसिंग ऑन द डायनामिक इक्विलिब्रियम पाथ. सपोज जो इकोनॉमी है वो इस इक्विलिब्रियम पे चल रही है, इस लेवल पे चल रही है, ई लेवल के ऊपर. यहाँ से अगर हम स्टार्ट करें तो इकोनॉमी जो है वो सपोज यहाँ पे चल रही है एंड रीच्ड एट सपोज दिस पॉइंट. सपोज दिस पॉइंट इज P0. तो हमने क्या बनाया कि इकोनॉमी जो है वो इक्विलिब्रियम पाथ के ऊपर मूव कर रही है एंड इकोनॉमी रीच्ड हेयर एट P0 at some point of time. Suppose also that at this juncture का मतलब होता है a particular point in time. तो इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर सपोज ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट टेक्स प्लेस. ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट हमने कर दिया ड्यू टू एन इन्वेंशन और ड्यू टू अदर रीजन. तो उससे क्या होगा, कॉन्सिक्वेंटली आउटपुट इंक्रीजेस एंड द इकोनॉमी लीव्स इक्विलिब्रियम पाथ. तो इकोनॉमी जो है आउटपुट इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा जैसे ही हमने ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट किया. एंड जो इक्विलिब्रियम पाथ है इकोनॉमी वो छोड़ देगी. इकोनॉमी और जो आउटपुट है वो अप जाना स्टार्ट हो जाएगा और इसके ऊपर ही ये चलती जाएगी. इट विल ट्रेड ऑन दिस कर्व. तो इसमें क्या होगा, आफ्टर सर्टेन टाइम लैग, तो आफ्टर सर्टेन टाइम लैग बिगिंस द मल्टीप्लायर प्रोसेस. तो जब हमने ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट किया तो मल्टीप्लायर प्रोसेस काम करना स्टार्ट करेगी caused by the autonomous investment. As a result, output and employment increase. तो जैसे ही ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट हुआ मल्टीप्लायर एक्टिव हो जाएगा और इकॉनमी का जो आउटपुट है वो ऊपर को जाना स्टार्ट हो जाएगा. इंक्रीज इन आउटपुट लीड्स टू इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट. तो जैसे ही ये आउटपुट ज़्यादा ऊपर को जा रहा है तो इससे इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट भी होगा. तो जब इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट होगा दैट इन टर्न ब्रिंग्स एक्सेलरेटर इन एक्शन. तो एक्सेलरेटर जो है वो एक्टिव हो जाएगा क्योंकि एक आउटपुट करने से जो एक्सेलरेटर है वो होगा, काम करेगा. जैसे हमने पहले देखा था कि अगर हम 6 में आउटपुट 100 करते हैं सपोज, तो आउटपुट करने के बाद जो इकॉनमी हमारी जो मशीन्स है कैपिटल है वो अर्न आउट हो गई. तो 20 हमने ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट कर दिया. आउटपुट अगर हम ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना होगा. दिस इन्वेस्टमेंट 10 ये इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट होगा और इससे
जो कितना आउटपुट करने के लिए कितना इन्वेस्टमेंट किया, तो फिर एक्सेलरेटर काम करने लग जाएगा। इस इन्वेस्टमेंट को करने की वजह से मल्टीप्लायर काम करने लग जाएगा और फिर दोनों की जो इंटरेक्शन है वो बन जाएगी। This interaction between the multiplier and the accelerator causes expansion in the economy। तो इससे क्या होगा, इकॉनमी में एक्सपेंशन हो गई और आउटपुट बढ़ना स्टार्ट हो गया। विच देन मूव्स अलोंग द एक्सपेंशन और ऑसिलेशन पाथ। तो इस पाथ के ऊपर जो चलते जाएंगे, सपोज अप टू दिस पॉइंट, अप टू सपोज P1, अलोंग दिस पाथ और ऑसिलेशन स्टार्ट हो गई। देखो at this path P0 P1 until we reached at point P1 on full employment line FF। और जब तक हम FF लाइन के ऊपर नहीं पहुंचते तब तक ये चलता जाएगा। एक्सपेंशन जो है इसके ऊपर और ऊपर beyond this P1 point will not be possible because of full employment constraint or because of this ceiling। अब क्या हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा, the most it can do is to creep along the line FF। ज़्यादा से ज़्यादा हम इस लाइन के ऊपर चल सकते हैं, इससे आगे नहीं जा सकते। इसके लाइन के साथ साथ हम चल सकते हैं। अब वो कितनी देर चलेंगे कितनी देर नहीं चलेंगे वो डिपेंड करता है सर्कमस्टांसेस पे। बट द इकोनॉमी कैन नॉट मूव लॉन्ग द लाइन FF फॉर लॉन्ग। पर इस लाइन के ऊपर हम बहुत ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक नहीं चल पाएंगे। क्यों? द रीज़न इज़ दैट इनिशियल वर्स्ट ऑफ ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट, जो भी पहले ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट हुआ था उसका जो इफेक्ट है दैट विल बी शॉर्ट लिव्ड। तो ज़्यादा उसका इफेक्ट ज़्यादा देर तक रहेगा नहीं। द रीज़न इज दैट द इन्वेस्टमेंट, ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट जो इफेक्ट है दैट विल बी शॉर्ट लिव्ड। Thus on the upper part of the path P0 P1, इसका जो upper part है this one, no more than the normal amount of autonomous investment is taking place। तो अब autonomous investment जितना worn out के हिसाब से चाहिए उतना ही होगा और ज़्यादा अब होगा नहीं। It implies that the expansion along P0 P1 has been mainly on account of the induced investment। It means जो एक बार हमने autonomous investment किया वो तो दोबारा नहीं होगा। तो ये जो expansion हो रही है this is based on the induced investment। आने वाले जो पीरियड्स हैं जैसे हम यहाँ पे बनाएं, ये हुआ था पहले, फिर एक नेक्स्ट पीरियड आ गया, फिर ये नेक्स्ट पीरियड आ गया, फिर ये नेक्स्ट पीरियड आ गया। तो ये जो डिफरेंट पीरियड आगे चले जैसे जैसे इकॉनमी ग्रो हुई तो ये इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट की वजह से ही चल रहे हैं। बट व्हेन द सीलिंग इज हिट, पर जब सीलिंग आ गई एक बारी, the expansion sustained by the induced investment along FF is bound to end। तो ये एक्सपेंशन है ये भी बंद हो जाएगी और इसके साथ साथ जो चलना है ये प्रोसेस भी रुक जाएगा।
एंड द इकॉनमी, जो इकॉनमी है उसमें डाउन ट्रेंड और यू कैन से डाउन स्विंग स्टार्ट हो जाएगा लाइक दिस। तो नीचे को इकॉनमी आनी स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर हम इस नीचे को आने का जो कारण है इसको दोबारा एक्सप्लेन करें। वंस द सीलिंग लाइन FF इज हिट, जैसे ही सीलिंग लाइन FF टच हुई, द इंक्रीज इन आउटपुट अलोंग FF, इसके साथ जो आउटपुट इंक्रीज हो रहा है, अब देखो यहाँ से जो आउटपुट इंक्रीज हो रहा है वो बहुत ज़्यादा है, बट इस लाइन के ऊपर जो आउटपुट इंक्रीज हो रहा है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। जैसे हम इसकी कैलकुलेशन करें, देखो हॉरिजॉन्टली यहाँ पे है पॉइंट, यहाँ पे हमने इतना आउटपुट हमारा बढ़ गया। बट अगर हम इसके 2 पॉइंट देखें, एनी 2 पॉइंट्स, सपोज दिस पॉइंट एंड दिस पॉइंट, तो आउटपुट का जो इंक्रीज है वो बहुत ज़्यादा कम है। जब ये पॉजिटिव लाइन है तो आउटपुट का इंक्रीज इतना ज़्यादा है, सपोज, तो यहाँ से यहाँ तक देखो इतना ज़्यादा है। बट अगर हम इन 2 पॉइंट्स को देखें तो सिर्फ इतना का ही है। तो ये जो आउटपुट का इंक्रीज है इस लाइन के साथ साथ इज नॉट हाई इनफ टू इंड्यूस इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट को प्रेरित करने के लिए ये बहुत ज़्यादा नहीं है। एंड हेंस इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट सीजेस, तो जो इंड्यूस्ड इन्वेस्टमेंट है वो धीरे धीरे बंद हो जाएगा, डाउन स्विंग जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। द डाउन स्विंग मे बी प्रोलॉन्ग्ड if output investment relation has a 3 or 4 year lag। तो डाउन स्विंग कब तक चलेगा वो डिपेंड करता है आउटपुट इन्वेस्टमेंट और यू कैन से एक्सेलरेशन के ऊपर। बट द डाउनफॉल इन द आउटपुट इज इनेविटेबल, पर ये होगा ज़रूर, डाउनफॉल तो आना ही है। Because returns in the induced investment are much less than expected, क्योंकि जो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की जो रिटर्न है वो ज़्यादा नहीं आएगी, इसलिए जो डाउन ट्रेंड है वो ज़रूरी है। तो वंस द डाउनफॉल हैज स्टार्टेड, जैसे ही डाउनफॉल स्टार्ट हुआ, there is nothing in the process to stop it at EE। तो जैसे ही ये स्टार्ट हुआ डाउनफॉल, हम EE की तरफ जा रहे हैं, तो EE के ऊपर आके इसको रोकने वाली कोई भी चीज़ नहीं है और ये EE से नीचे जा सकता है। डाउनफॉल जो है EE के आगे भी जा सकता है। The rate of fall, however, should be lower since the disinvestment is limited to the rate of depreciation, which goes on decreasing following the decrease in output and fall in the stock of capital। पर ये जो डाउन स्विंग है, डाउन स्विंग की जो स्पीड है वो कम हो जाएगी, मतलब ये लाइन थोड़ी फ्लैट होगी। इसके कंपैरेटिव ये जो लाइन है वो थोड़ी फ्लैट बनेगी। क्यों बनेगी फ्लैट? क्योंकि जो डिसइन्वेस्टमेंट है, डिसइन्वेस्टमेंट कितना होगा, जैसे सपोज हमने 100 हमारी कैपिटल है, आउटपुट हमने किया इस कैपिटल से, मशीन्स डेप्रिशिएट हो गई, सपोज 20 डेप्रिशिएट हो गई, 80 हमारे पास कैपिटल बच गई, तो 20 जो है वो हमारा डेप्रिशिएट हो गया, 20 ही हमारा डिसइन्वेस्टमेंट हो गया और यू कैन से इन्वेस्टमेंट कम हो गया, क्योंकि हम दोबारा ये 20 नहीं करेंगे इफ़ वी आर इन
डाउन ट्रेंड सिचुएशन। तो कैपिटल स्टॉक हमारे पास पहले से कम हो गया। तो अगर हमारे पास कैपिटल स्टॉक ही कम है, इट मीन्स नेक्स्ट टाइम इस कैपिटल स्टॉक का जो डेप्रिसिएशन है वो भी कम हो जाएगा। जैसे 100 में से 20 हुआ तो 80 में से जो डेप्रिसिएशन है वो कम ही होगा। इसलिए जैसे जैसे हमारे पास कैपिटल स्टॉक कम होता जाएगा वैसे वैसे उसका डेप्रिसिएशन भी कम होता जाएगा और जो आउटपुट का डिक्रीज है वो भी कम होता जाएगा। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं? दैट इज द रिवर्स एक्सेलरेटर डज नॉट वर्क एज फास्ट एज इट डज ड्यूरिंग द अपस्विंग। तो जो अपस्विंग के टाइम एक्सेलरेटर ने जितनी तेजी से काम किया, डाउन स्विंग के टाइम एक्सेलरेटर उतनी तेजी से काम नहीं करेगा। तो दोनों लाइंस में सिमेट्री भी नहीं बनेगी फिर, क्योंकि जैसे ये लाइन के कंपैरेटिव अगर हम ये लाइन फ्लैट बना रहे हैं, थोड़ी फ्लैट है ये लाइन इसके कंपैरेटिव, तो दोनों में जो सिमेट्री है वो नहीं बनेगी दोनों लाइंस में, बल्कि ये सीधा जाने की बजाय, ऐसे जाने की बजाय ये और फ्लैट हो जाएगा, ऐसे चल पड़ेगा, ऐसे चल पड़ेगा और भी ज़्यादा ये लाइन फ्लैट हो जाएगी, ऐसे ये आगे आगे तक जा सकता है। तो अगर हम इस लाइन को देखें और इस लाइन को देखें, then we will find the asymmetry, not symmetry. Even though the process of decline in output may be slower, आउटपुट की जो डिक्लाइन की प्रोसेस है वो स्लो हो सकती है। A situation characterized by slump does not take place in a due course. Here, autonomous investment is reduced a little below the normal level. तो autonomous investment थोड़ा कम हो जाएगा, पर जो induced investment है वो तो ज़ीरो ही हो जाएगा। तो ये जो स्लम्प है, अगर हम इसको पॉइंट लगाएं Q1, इसको अगर हम पॉइंट लगाएं Q2, तो ये जो कोर्स ऑफ स्लम्प है वो हमारा बनेगा Q1 Q2। इसके नीचे ये तो नहीं होगा सिमेट्री, लैक ऑफ सिमेट्री की वजह से, तो ये Q1 Q2 वाला कोर्स हमारा होगा। The absolute magnitude of output decreases along Q1 Q2 towards the slump line LL, और LL तक ये आ जाएगा हमारी जो लोअर लिमिट की लाइन है। दूसरा पॉसिबल पाथ क्या हो सकता है? अनदर पॉसिबल पाथ कोर्स ऑफ स्लम्प, दूसरा पॉसिबल पाथ हो सकता है ये वाला। Suppose it is Q1R। तो ये जो Q1R है, ये जो पॉसिबल पाथ है वो ये तब होगा when output plunges downward indefinitely। तो ये अगर नीचे को सीधे ही चल पड़े indefinitely, फिर ये लोअर लिमिट भी क्रॉस कर सकता है। बट अकॉर्डिंग टू हिग्स दिस इज वेरी रेयर पॉसिबिलिटी कि ये वाला पाथ हो, इसकी पॉसिबिलिटी नहीं है। द नॉर्मल केस और नॉर्मल कोर्स ऑफ स्लम्प जो होगा वो यही होगा
Q1 से Q2 तक। और यहाँ से हमने स्टार्ट किया, ये बन गया, इधर को गए, नीचे को गए, यहाँ पे आए, और यहाँ से अगर हम इसकी स्लोप को कम करते जा रहे हैं तो ये दोबारा फिर ऊपर को जाना पॉसिबल है। देखो कैसे। तो यहाँ से हम रिकवरी की तरफ हमारा टर्न जो है वो कैसे आएगा। व्हेन डाउन स्विंग हिट द बॉटम, जब जैसे ही इसने बॉटम को हिट किया, यहाँ तक आया लोअर लिमिट तक, इट स्टार्ट्स मूविंग अलोंग द स्लम्प इक्विलिब्रियम लाइन। तो ये इसके साथ साथ चल सकता है ऐसे। अगर हम इसको अनडॉटेड बनाएं तो ऐसे ये चल सकता है। आफ्टर अ टाइम लैग, जब इधर से टाइम देखो चल रहा है आगे आगे, तो क्या होगा, ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट बिगिंस टू टेक प्लेस। तो ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट सपोज दोबारा हो जाएगा। डिप्रेशन में जब इकॉनमी आ गई, दिस इज केन्जियन पार्ट, तो दोबारा फिर जो इकॉनमी है वो अपवर्ड स्टार्ट हो जाएगी। तो आउटपुट जो है वो फिर बिगिंस टू राइज अगेन, ऊपर को जाना स्टार्ट हो जाएगा, और फिर यही सिस्टम चल पड़ेगा। दिस इंक्रीज इन आउटपुट ब्रिंग्स द एक्सेलरेटर बैक इनटू एक्शन। तो जैसे ही ये आउटपुट ऊपर को जाएगा, ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट की वजह से, मल्टीप्लायर की वजह से ऊपर को गया, आउटपुट बढ़ा, आउटपुट बढ़ने से फिर जैसे यहाँ पे हुआ था, एक्सेलरेटर काम पे आया, दोनों की इंटरेक्शन हुई, एक्सेलरेटर एंड मल्टीप्लायर की। तो दिस मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ द रिकवरी once again. Once the autonomous investment starts coming in, जैसे ही autonomous आया, the process of multiplier की process and output बढ़ने से later stage पे, its interaction with accelerator makes the economy grow, यहाँ से ऐसे ऊपर तक, on the path of expansion, यहाँ तक पहुँच जाएंगे, towards the equilibrium path line FF, और उसके साथ यहाँ से चल के फिर इसके साथ साथ चलेंगे, यही सिचुएशन दोबारा आ जाएगी। तो ऐसे ही जो साइकिल है वो कंप्लीट हो जाएगा। दिस इज द मेन एक्सप्लेनेशन ऑफ हिक्स मॉडल। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ हिक्स थ्योरी। हिक्स का जो ट्रेड साइकिल है इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। Hicks has pointed out that there is a difference between the role of accelerator at the upswing and its role at the downswing. On the downswing, the accelerator is inoperative because of excess capacity. This kind of role of accelerator is regarded as a very important contribution by Hicks. तो ये जो हिक्स की बात है इम्पोर्टेंस की, वो क्या शो करती है कि जो एक्सेलरेटर है अप साइड जाने के लिए तो इसकी जो स्पीड है वो तेज होगी, डाउन साइड आने के लिए इसकी जो प्रोसेस है वो सिमिलर नहीं होगी अप साइड वाली। जैसे हम कहते थे कि लैक ऑफ सिमेट्री बन जाएगी। तो एक्सेलरेशन का अप साइड ज़्यादा काम करना, डाउन साइड कम काम करना, दिस इज कंसिडर्ड एज द very important contribution of Hicks. Criticism of this model, 2 points हैं। First है, like other theories, Hicksian theory too does not provide sufficient reasons
for the linear consumption function and a constant multiplier. तो ये जो हमने कांस्टेंट रखा MPC को, मल्टीप्लायर कांस्टेंट बनाया, ऑटोनमस इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट रखा, लीनियर फंक्शन दिए, इनका जो रीज़न है वो ज़्यादा नहीं एक्सप्लेन किया. It is quite likely that during the phases of expansion and contraction, तो जैसे ही हम एक्सपेंशन की तरफ जाएंगे या कॉन्ट्रैक्शन की तरफ आएंगे, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन विल चेंज. इनकम डिस्ट्रीब्यूशन नेचुरली चेंज होगा. दिस चेंज इन इनकम डिस्ट्रीब्यूशन विल चेंज MPC एंड दस मल्टीप्लायर. तो हिक्स ने MPC को कांस्टेंट मान लिया. अब मल्टीप्लायर का फार्मूला है 1/1 minus MPC. If MPC is constant, it means multiplier is constant. But practically, they may change or they will change, must change because of the process of expansion and contraction. जब भी expansion होगी तो इनकम की डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होगी. तो डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होने से कंजम्पशन चेंज होगी, तो MPC चेंज हो जाएगी. MPC चेंज हो जाएगी तो मल्टीप्लायर चेंज हो जाएगा. तो हिक्स जो है, इन्होंने कांस्टेंट कैसे माना MPC को, मल्टीप्लायर को, उसकी कोई सफिशिएंट एक्सप्लेनेशन नहीं दी हुई. ऐसे ही अगर हम जो एक्सेलरेटर देखें, एक्सेलरेटर को कांस्टेंट मानना, it is also not found in empirical studies. Accelerator also changes due to technical innovations, development of technology. जो कैपिटल आउटपुट रिलेशन है वो चेंज होता रहता है. This was about the Hicks model, and for further reading you must follow this book, Macroeconomics Theory and Policy, given by D.N. Dwivedi. This is one of the best books of macroeconomics. This is published by Tata McGraw-Hill Company. बहुत अच्छी ये बुक है, not for only Hicks theory but for whole chapters, for all chapters of macroeconomics. And you can also consult the original book of Hicks. This is Oxford University Press, A Contribution to the Theory of Trade Cycle, given by J.R. Hicks in 1950. Both books are very useful, but Hicks' book is particularly for his model of trade cycle, and the Dwivedi book for overall macroeconomics. Thanks for watching this video.